Okay, for general solutions, we are last time did if sine theta is equal to sine alpha, then what is theta? Formula for theta is equal to n pi. Tell me, n pi plus minus 1 raised to n alpha. This is general solution formulas which we have done last time. Cos theta is equal to cos alpha for general solutions. Okay. Principal solutions में अलग प्रोसीजर था. General solutions theta is equal to 2n pi plus or minus alpha. Okay. And if I see tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha. Okay. So these were the three formulas which we have done for general solutions. Then we have also done what if sin square theta is equal to sin square alpha. Then theta का sin square, cos square, tan square सबके लिए एक ही फॉर्मूला था n pi plus or minus alpha. ये sin square, cos square, tan square सबके लिए यही एक फॉर्मूला था. After this we have also learned that sin of 180 plus or minus remains sin. Okay, ये 180 है. And we also know that all silver teacups, according to this, the values, जैसे अगर मैं sin का example लूँ, तो sin is positive in these two quadrants, but sin is negative in these two quadrants. Okay, so these were the topics which we have covered yesterday. हमने कुछ sums किए थे. Let us continue. We have done 6th का third sum, 6th का second sum, 6th का third sum पे आ जाओ. We have cos 4 theta is equal to cos 2 theta. So we have cos 4 theta is equal to cos 2 theta. But to solve it, अपने को यहाँ पे वैल्यू चाहिए. जैसे यहाँ पे हाफ आना चाहिए, √3/2 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ऐसे वैल्यूज चाहिए. But here right now is cos 2 theta. Let us take it on one side. So this becomes cos 4 theta minus cos 2 theta is equal to 0. Cos 4 theta minus cos 2 theta is 0. Now, what is cos minus cos? Cos minus cos becomes minus 2 sin. That is factorization formula. Cos minus cos is minus 2 sin into sin. This is c plus d by 2. 4 theta plus 2 theta, 6 theta by 2. यानी 3 theta. c minus d by 2. c minus d by 2. 4 theta minus 2 theta is 2 theta by 2 यानी theta. So here we get ये minus 2 तो नीचे चला जाएगा. So what we get is sin 3 theta into sin theta is equal to 0 because 0 upon minus 2 is 0. Therefore, sin of 3 theta is 0 and sin of theta is equal to 0. और sin of theta is equal to 0. अभी हम लोग जनरल सॉल्यूशंस का मेथड, मैंने क्या कहा था, हमको यहाँ पे वैल्यू चाहिए. एक बार वैल्यू आ गया, जैसे 0 आया, हाफ आया, इस तरह का वैल्यू आएगा ना, then I can use the formula for general solutions. Okay, so if I take this now, this is 0. 0 यानी sin of which angle is 0? ये 0 कब आता है? Sin of which angle is 0? Sin 0. ठीक है, similar way. Sin of which angle is 0? This is again sin 0. So what is 3 theta equal to? Apply general solutions formula. What is 3 theta equal to? N pi plus minus 1 raised to n, and this plays the role of alpha, 0. So what is 3 theta equal to? N pi. ये पूरा term 0 हो गया, n pi. यानी what is theta equal to? N pi by 3. Similar way, if I apply the similar steps over here, what is 3 theta equal to? हमने general solutions का formula apply किया इधर, n pi plus minus 1 raised to n into 0. वैसे यहाँ पर भी general solutions apply करो. What is theta equal to? N pi plus minus 1 raised to n into alpha. Alpha का value 0.
0 into anything will become 0. Yani what is theta equal to n pi? So these are your two results. Okay. Theta is equal to 3 n pi by 3 and theta is equal to n pi. Now let us take a similar question. 7 sum देखो. Now 7 sum में question is 7 का first sin theta is equal to tan theta लिखा है. Now sin theta is tan theta का मतलब sin theta is sin upon cos. ये क्रॉस कर लो तो sin theta into cos theta is equal to sin theta. We cannot cancel. Please do remember. यहाँ पे अपन cancel नहीं कर सकते. हम लोग को जनरल solution, maximum number of solutions find out करने का है. तो यहाँ पे हम लोग sin theta cancel नहीं कर सकते. Let us take it on one side. If I take it on one side, I'll get sin theta cos theta minus sin theta is equal to 0. Now we'll remove common. What is common in both of them? Sin theta. So what is left? Cos theta minus 1 is 0. Therefore, what will I get is sin theta is equal to 0 or cos theta minus 1 is 0 या फिर cos theta is equal to 1. Now we'll again apply the method of general solutions. जैसे अभी यहाँ पे कैसे किया? Similar steps वहाँ पे करना है. Now sin theta is 0 मतलब sin theta is equal to sin of, and 0 किसके लिए आता है? Sin of which value is 0? 0. Sin of 0. So therefore, what is theta equal to? अभी जनरल सॉल्यूशंस का फॉर्मूला अप्लाई करो. What is theta equal to? n pi plus minus 1 raised to n into 0. So what is theta equal to? n pi. ये एक आंसर आया. Sorry for that. Yeah. अब यहाँ पे बताओ. Cos theta is equal to now 1. Cos of which angle is 1? Cos कौन सा एंगल का 1 आता है? Cos of 0 ही 1 आता है ना. सबसे पहला वैल्यू कंसीडर करना है. Cos of 2 pi भी 1 होता है, पर अभी वो नहीं कंसीडर करना है. तो cos of 0 is 1. Therefore, हम लोग जनरल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं. So what is theta equal to? Cos का जनरल सॉल्यूशंस का फॉर्मूला क्या है? Cos का जनरल सॉल्यूशंस का फॉर्मूला क्या आता है? 2n pi plus or minus alpha. Okay, so let's apply that formula over here. So what is theta equal to? 2n pi plus or minus alpha यानी 0. So what is theta equal to? 2n pi. Okay, टेक्स्ट बुक में कुछ आंसर्स रॉन्ग है. जैसे ये वाला आंसर एक ही आंसर लिखा हुआ है, एक आंसर मिसिंग है, तो ये इनकम्प्लीट आंसर है. वैसे इस वाले में भी एक ही आंसर लिखा है, एक मिसिंग है, ये भी इनकम्प्लीट आंसर है. ओके, तो टेक्स्ट बुक के आंसर्स में फॉल्ट है. Now cos theta plus sin theta equal to 1. Now what I will do is I am using a different technique here, जो हम लोगों को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में भी यूज कर रहा है. मल्टीप्लाई द होल टर्म बाय 1 by root 2. मैंने पूरे टर्म को 1 by root 2 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, सबको 1 by root 2 से मल्टीप्लाई किया. रीजन 1 by root 2 is also your sin of 45. And 1 by root 2 is also your cos of 45. तो अभी अपने पास ऑप्शन है. हमारे पास ऑप्शंस क्या आता है? हम लोग इसको cos ले सकते हैं, इसको sin ले सकते हैं. बिकॉज 1 by root 2 sin भी बनता है, cos भी बनता है. हम लोग ये काम करते हैं कोसाइन का फॉर्मूला.
ठीक है, कोई भी कर सकते हैं, वो तुम्हारा चॉइस है। ठीक है, तो मैंने 1/√2 को cos 45, 1/√2 को sin 45 लिया। नाउ व्हाट इज cos प्लस sin becomes cos A minus cos B. what is cos cos plus sin becomes, yes please, cos of A minus A minus A B. minus B. a minus b is equal to 1/√2. ठीक है, but 1/√2 cos of which angle? Cos of which angle is 1/√2? Pi by 4. Cos of pi by 4. ठीक है, सो हमको ये वाला वैल्यू आया। अब यहाँ पर इसका जनरल सॉल्यूशंस मिल जाएगा, जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा था ना, कंपेयर करने के बाद ये थीटा इधर रहेगा और इधर जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई किया इधर पे, वैसे यहाँ पर हम लोग जनरल सॉल्यूशंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशंस हियर? 2n pi. cos का जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला थीटा माइनस पाई बाय 4। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos का जनरल सॉल्यूशंस? 2n 2n pi alpha plus or minus alpha. प्लस और माइनस पाई बाय 4। ठीक है, ओके। अब ये वाला स्टेप, लास्ट स्टेप, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे को थीटा ढूंढना है, मेरे को थीटा ढूंढना है। अभी करेंटली थीटा नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करें, प्लस और माइनस अलग अलग करो। सो वी विल राइट थीटा माइनस पाई बाय 4 is 2n pi plus pi by 4 और theta minus pi by 4 is 2n pi minus pi by 4। तो मैंने थीटा माइनस पाई बाय 4, 2n pi plus pi by 4, 2n pi minus pi by 4 लिखा। सो व्हाट इज थीटा? ये मेरा जनरल सॉल्यूशन। सो व्हाट इज थीटा? ये n pi by 4 minus 45 इधर आ गया, प्लस 45 हो गया, यानी क्या हो जाएगा? 2n pi 45 plus 45 is going to become 90 और थीटा इज इक्वल टू 45 और यहाँ पे 45 कैंसिल, यानी व्हाट इज योर आंसर? 2n pi। सो दीज आर माय जनरल सॉल्यूशंस। थोड़ा सा सिर्फ लिखने का तरीके में स्लाइड चेंज किया तो अकॉर्डिंगली करेंगे। सो हियर फिफ्थ के फर्स्ट में क्या करना था? व्हाट इज sin 2 थीटा इक्वल टू हाफ साइन ऑफ व्हिच एंगल इज हाफ? Sin 30. साइन ऑफ 30 यानी पाई बाय 6। ओके, अभी लिखने के तरीके में स्लाइड चेंज कर रहे हैं। सो 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर जनरल सॉल्यूशंस का फॉर्मूला, साइन का जनरल सॉल्यूशंस का फॉर्मूला अप्लाई करो। व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला फॉर साइन? यू डोंट सी दैट, ऊपर वहां पे लिखा हुआ है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? tan pi minus 1 raised to n alpha। अब ये 2 डिवाइड करो, सो व्हाट इज थीटा इक्वल टू n pi by 2 minus 1 raised to n डिवाइड by 2 करोगे तो by 2। ठीक है, ये कंपैरेटिवली अभी इजी लगा रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स अप्लाई द सिमिलर स्टेप्स ओवर हियर। cot 4 थीटा, सबसे पहले इसको tan 4 थीटा करो। सो व्हाट इज tan 4 थीटा? रेसिप्रोकल किया है ना, सो व्हाट इज tan 4 थीटा? -1। बट वी ऑलरेडी नो दैट tan of 45 is 1, पर मेरे को -1 चाहिए। सबसे पहला tan नेगेटिव किधर आता है? अपने को माइनस चाहिए। सबसे पहला tan नेगेटिव किधर आता है? इधर tan पॉजिटिव है, इधर tan पॉजिटिव है। सबसे फर्स्ट tan नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसी को मैं वापस लिख रहा हूँ। व्हाट इज tan 4 थीटा इक्वल टू -1 चाहिए, क्या लिखेंगे? tan ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, इसको यूज करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, क्या आएगा? पाई माइनस पाई बाय 4। तो मैंने -1 को लिखा है। तो मैंने यहाँ पे ना लिखने के तरीके में नोटिस करो, एक छोटा सा चेंज किया है। जो हमने लास्ट टाइम सम्स किए थे उसमें एक स्मॉल चेंज किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे साइन लिख के 2 थीटा, इधर 2 थीटा लिखने का, इधर जनरल सॉल्यूशंस लिखने का। तो यहाँ पर मैंने tan 4 थीटा लिखा है और इधर पहले एंगल अरेंज किया है। यहाँ पर बीच में एक स्टेप लिए कि 1 किसका आता है? 1 इज tan ऑफ 45, पर मेरे को -1 चाहिए। -1 कम्स इन योर, इधर नहीं आएगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, इधर नेगेटिव आता है और इधर आता है। सबसे पहला नेगेटिव ही चेक करो, तो ये नेगेटिव आता है, दैट इज इधर कैसे जाने का? 180 माइनस। इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। सो व्हाट इज योर आंसर? tan 4 थीटा इज tan ऑफ 4 पाई माइनस पाई, यानी कितना आएगा?
3 पाई बाय 4। तुमको इस तरह से लाना है और फिर जनरल सोल्यूशन लिखो। सो देयरफॉर व्हाट इज 4 थीटा इक्वल टू, इसका जनरल सोल्यूशन, tan का जनरल सोल्यूशन क्या आता है, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा यानी 3 पाई बाय 4। अब 4 क्रॉस हो जाएगा, सो व्हाट इज थीटा इक्वल टू n पाई बाय 4, 4 क्रॉस किया n पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 60। ठीक है, ये लास्ट टाइम किया था सब हमने कि sin and cos का वैल्यू कैन बी एनीथिंग इन बिटवीन 1 एंड -1। तो मैक्सिमम वैल्यू इज +1, ठीक है, एंड द मिनिमम वैल्यू इज -1। सो sin एंड cos दोनों में +1 और -1 कैन बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगर तुम्हारा उसके बीच में आंसर आता है, मींस दैट सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ओके, बट tan के अंदर मोर देन 1 इज आल्सो पॉसिबल। सो लेट अस लुक एट दिस वन, cos to theta। ठीक है, cos का वैल्यू should lie where between -1 and +1. Therefore, the solution is possible. तुमको सिर्फ पूछा है ये -1 है तो -1 है, यानी ये इसी रेंज में लाई कर रहा है। Therefore, the solution is possible. Cos square theta is -1. So what is cos theta? Square root of -1, यानी I imaginary term में आंसर आता है। ठीक है, that is imaginary। ओके, अगर इमेजिनरी टर्म में तुम्हारा आंसर आता है, cos का वैल्यू -1 एंड +1 के बीच में लाई करता है, इमेजिनरी में नहीं लाई करता। देयरफॉर व्हाट इज द आंसर? द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। बस इतना ही करना है। व्हाट इज sin थीटा? 3/2 यानी 1.5। नोटिस करो 1.3/2 या फिर 1.5 इज मोर देन 1। sin थीटा का वैल्यू शुड लाई बिटवीन -1 एंड 1। दिस इज मोर देन 1। देयरफॉर solution is not possible। यहाँ पे solution is not possible। If I look at this, what is tan theta equal to 5/3। 5/3 यानी more than 1 है, but tan का value can be more than 1। tan का value can be more than 1। Therefore, what will I say? Therefore, the solution is possible। Possible। बस, that's your answer। नहीं बता। You are asked to find Cartesian coordinates and what will be given over here। ये Cartesian coordinate ढूंढने का है, तो ये जो दिया है ना, ये क्या है? ये polar coordinates, वहां पे लिखा हुआ है whose polar coordinates are। अगर ये polar coordinates है, means this is r term √2 and this is theta। This is called as magnitude and this is called as argument या फिर amplitude। This is magnitude and this is argument or amplitude। This we have done in complex number chapter 11th standard। तो ये r का वैल्यू है और ये थीटा का वैल्यू है π/4। मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो आई विल अप्लाई द फॉर्मूला। व्हाट इज x इज इक्वल टू r cos थीटा। r का वैल्यू इज √2 cos of 45। cos of 45, what is cos of 45? 1/√2। 1/√2। √2 gets cancelled। y is equal to r sin theta, that is √2 sin of 45, that is √2 into 1/√2। Answer is 1। Therefore, what is the Cartesian coordinates over here? 1,1। ठीक है, ये तुमने 11th में किया हुआ था। ठीक है, so I don't think so it will have be a much of problem for you। This is 3/4, 3 π/4। So let's start here, 3/4, 3 π/4। What is r equal to? And this is 3 π/4। Okay, r और theta दोनों मालूम है। So x is equal to r cos theta। r का वैल्यू 3/4 cos of 3 π/4। Now cos of 3 π/4 फाइंड कैसे करेंगे? तो नीचे 4 है ना, ऊपर क्योंकि ये π/4 होता है, आई कैन इजीली फाइंड इट। 3 π/4 है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिस इज cos, नीचे 4 है तो ऊपर 4 लेके आओ, 4π - π। सॉरी, नीचे 4 है तो ऊपर 4 लेके आओ, 4π - π/3। सो दैट विल बिकम 3/4 cos of 4π/4 - π/4। मैंने क्या किया है, ये जो 3π/4 था ना, वो 3π/4 को
3 पाई को 4 पाई माइनस पाई किया। 4 पाई क्यों किया? मल्टीपल ऑफ ये नंबर करो, इसका मल्टीपल बनाओ। तो अगर समझो 7 पाई होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, इसका मल्टीपल, यानी मैं यहाँ पे क्या लिखता, 7 पाई रहता तो मैं लिखता था 8 पाई माइनस पाई, ठीक है। 9 पाई होता तो 8 पाई प्लस पाई, तो उसके मल्टीपल्स में लिखते। रीजन मल्टीपल्स क्यों चाहिए? ताकि ये पाई बनेगा। व्हाट इज कॉस ऑफ 180? 180 के कारण कॉस का क्या होता है? कॉस का कॉस सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड ऑफ 180 माइनस 180 माइनस, यानी सी दिस इज 180 180 माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट। ऑल सिल्वर, साइन का आंसर इज पॉजिटिव, तो कॉस का आंसर इज नेगेटिव। So what is your answer? 3/4 minus bar cos of 45 is 1/√2, यानी minus 3/4. This is x का वैल्यू। वैसे y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y is equal to r sin theta, ठीक है। once again you help me with this step। r का वैल्यू कितना दिया है? 3/4 cos of theta का वैल्यू 3π/4। सर साइन ऑफ साइन ऑफ 3π/4। ना डिनोमिनेटर में 4 है तो क्या करेंगे? 4 पाई माइनस पाई। 4 है ना, तो उसके मल्टीपल ऊपर डालेगा, 4 पाई माइनस पाई, दोनों का 4 सेपरेट किया, ये 4 कैंसिल हो गया। साइन ऑफ 180 के कारण साइन का साइन ही रहेगा, साइन ऑफ π/4। इस सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर, साइन का आंसर इज पॉजिटिव, कॉस का नेगेटिव था, साइन का पॉजिटिव है, यानी 3π/4 1/√2। सो व्हाट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ओवर हियर? पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या आएगा? फर्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x का वैल्यू क्या आया? -3/4√2, दूसरा वाला 3/4। इधर पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किया। सो मेथड गोस, दिस इज a √2 या फिर x √2, I can write this as x, y √2। So what is r equal to? r is equal to root of x square plus y square, याद आया? This is r का। अभी हमने क्या ढूंढा है? This is called polar coordinate का मैग्नीट्यूड। पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखते कैसे? r पोलर कैसे लिखते हैं? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इफ यू रिमेंबर, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर ऐसे लिखते थे, रिमेंबर? ठीक है, ये पोलर फॉर्म हो गया, पर अपने को पोलर फॉर्म नहीं ढूंढना है, अपने को सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब ये r का वैल्यू है, दैट इज मैग्नीट्यूड, और इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो अपने को r और थीटा ये जो ढूंढते हैं इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, और ये बोलते हैं पोलर फॉर्म, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में किया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लास्ट ईयर एक स्टेप ज्यादा किया था, अपने को वो करना ही नहीं, अपने को सिर्फ इधर ही छोड़ देना है। सो व्हाट इज r इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, दैट इज 2 + 2, दैट विल बिकम 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। इसमें प्लस माइनस नहीं आता है, और क्यों नहीं आता ये मैंने 10th स्टैंडर्ड से बता दिया है। पहले से √2 साइन है तो प्लस माइनस नहीं आएगा, पहले से √2 साइन, ठीक है। सो r का वैल्यू r इज 2। नाउ अभी थीटा फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज cos थीटा? x/r sin थीटा y/r, ठीक है। सो व्हाट इज cos थीटा इक्वल टू x का वैल्यू, x इज √2 अपॉन r यानी 2, sin थीटा √2 r यानी 2, ये 1, this is √2, ये 1, this is √2। now tell me cos of which angle is 1/√2? π/4 π/4 so theta is equal to π/4। cos of 45 is 1/√2, ठीक है। so theta का वैल्यू is π/4। बट ये करने से पहले तुमको क्वाड्रेंट चेक करना है, किस क्वाड्रेंट में 45 डिग्री आ रहा है। 45 बराबर है, बट किस क्वाड्रेंट में 45 आ रहा है? cos सिग्निफाइज x एक्सिस, sin सिग्निफाइज y एक्सिस। अगर cos भी पॉजिटिव है, sin भी पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव sin पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। cos भी पॉजिटिव है, sin भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल इज 45, ठीक है। सो थीटा 45 ही रहेगा। तुमको पोलर कोऑर्डिनेट्स ढूंढना था। सो व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स? पहला वैल्यू r का लिखते हैं, r का वैल्यू 2 है, दूसरा वैल्यू थीटा लिखते हैं, थीटा का वैल्यू π/4, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पोलर कोऑर्डिनेट्स। एनी ट्रबल हियर प्लीज आस्क, ठीक है। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, वी विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट इट। इसी का थर्ड सम देखो,
term is 1 and minus root 3. Now for this, x का value is 1, ये polar, ये Cartesian coordinates है. X is 1, y is minus root 3. Now we will find r. So what is r equal to? Root of x square plus y square. Are you clear with this step? That is root of x square and a 1 square, y square and a minus का square, minus root 3 का square. That is root of 1 square is 1, root 3 square is 3, and answer becomes 4. Square root of 4 becomes 2. I hope everyone understands this. ये positive आएगा, plus minus नहीं आएगा. तो r का वैल्यू मिल गया. मेरे को r चाहिए, मेरे को थीटा चाहिए. सी मेरे को ये r चाहिए रहता है और थीटा चाहिए होता है. These are called polar coordinates. r मिल गया. अब से मेरे को थीटा ढूंढने का. अब वो थीटा ढूंढने के लिए क्या प्रोसीजर आएगा? What is the method to find theta? यहाँ पे अपन ने किया था ना, sin theta cos theta, वही करना है. So what is cos theta? X upon r. What is sin theta? Y upon r. That is x का value is 1, r का value is 2. Sin theta, y का value is minus root 3, r का value is 2. Now look at the angles. Cos of which angle is half? Tell me quick. Cos of which angle is 60. half? Cos of 60. 60 is half. Very good. So theta का value 60 आएगा. Okay. But मेरे को इस बार quadrant भी check करना पड़ेगा. Okay. So quadrant कैसे check करेंगे? Cos signifies x-axis, sin signifies y-axis. So tell me, cos is x-axis, sin is y-axis. So cos is x-axis, sin is y-axis negative है, y-axis negative है, तो x-axis positive है, y-axis negative है, तो ये कौन सा quadrant हो गया? Fourth. Fourth quadrant में it is making an angle with x-axis. How much is that angle made with the x-axis? 60 degree. 60 यानी pi by 3. ठीक है? तो ये pi by 3 है. Now there are two ways to write it. मैं इधर से लिख सकता हूँ या फिर मैं इधर से लिख सकता हूँ. तो मैंने अगर डायरेक्ट लिखा तो माइनस पाई बाई 3 आएगा. क्यों? क्योंकि मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं. तुमको इतना ही करना है, तुमको यहाँ पे क्वाड्रेंट चेक करना है. अगर मैंने क्लॉकवाइज गया तो माइनस पाई बाई 3 लिखो. और एक दूसरा तरीका क्या है इसी को लिखने का? दूसरा तरीका क्या है? ये 60 बराबर है, यही 60 आने वाला है, ये 60 नहीं आता है, ये 60 बराबर है. पर इसी ये एंगल को अगर मुझे इधर से लिखना है, इस तरह से लिखना है, तो प्रोसीजर क्या आएगा? 360 में से पाई बाई 3 माइनस. ठीक है, 360 में से पाई बाई 3 माइनस यानी कितना हो गया? 6 पाई माइनस पाई. 6 पाई माइनस पाई बिकम्स 5 पाई बाई 3. ठीक है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है. तुम नेगेटिव वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, पॉजिटिव वाला भी चूज कर सकते हो. सो व्हाट इज द पोलर कोऑर्डिनेट्स ओवर हियर? पहले r का वैल्यू इज 2 एंड थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 3 या 5 पाई बाई 3. बेटर रहेगा पॉजिटिव वाला लिखो, 5 पाई बाई 3. दैट्स इट. ठीक है, these are called as polar coordinates.